بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز قاسمی۔ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے فعل لازم اور فعل متعدی کے بارے میں بتایا تھا۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ سبق سے ارتباط پیدا کرنے کے لیے، ربط اور جوڑ پیدا کرنے کے لیے فعل لازم اور فعل متعدی کو انشاءاللہ پھر دوبارہ سے بتائیں گے تاکہ پھر صحیح طور پر سمجھ میں آ جائے۔ اس کے بعد آج ہم یہ بات کریں گے کہ یہ فعل کہتے کس چیز کو ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کے بعد آگے جو سبق ہے اس کو پڑھائیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ فعل کس کو کہا جاتا ہے۔ فعل کا معنی ہوتا ہے کسی کام کا کرنا یا ہونا تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ میں پائے جائے۔ تو زمانہ کتنے ہوتے ہیں؟ زمانے تین ہوتے ہیں۔ زمانے کتنے ہوتے ہیں؟ زمانے تین ہوتے ہیں۔ زمانے تین ہوتے ہیں۔ کون کون؟ ماضی، حال، مستقبل۔ کون کون؟ ماضی، حال، مستقبل۔ یہ تین زمانے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کام، کسی بھی کام کو اگر آپ کریں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جائے گا، ضرور پایا جائے گا۔ یا تو کسی بھی کام کو آپ کریں گے تو ماضی میں اس کام کو کریں گے، یا پھر جس کام کو آپ کر رہے ہیں اس کام کو آپ حال فی الحال میں آپ کریں گے، جس کو حال کہا جاتا ہے، حال۔ یا پھر جس کام کو آپ کریں گے اس کو کسی آئندہ زمانے میں کریں گے۔ تو یہ زمانہ تین زمانہ ہی ہوتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ ان تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ فعل کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اب یہ بات سمجھنی ہے کہ فعل جو ہے کسی کام کا کرنا یا ہونا۔ کرنا کا مطلب اور ہونا کا مطلب، جیسے میں نے خط لکھا تو لکھنے کا کام کیا ہے۔ جیسے آپ نے خط لکھا تو خط لکھنے کا کام، جیسے کہ آپ نے خط لکھا، آپ نے خط لکھا، تو یہ لکھنے کا کام جو کیا ہے، لکھنے کا کام، لکھنے کا جو کام ہوا یہی تو ہے تمہارا۔ اسی کو کہا جاتا ہے فعل۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں۔ لکھنے کا کام اگر ہونا، جیسے کوئی آدمی سو گیا تو سونا، جس سے کہ دانش سو گیا، اب سونا جو ہے وہ اس میں آتا ہے ہونے میں۔ جیسے سو گیا، وہ کو کام ہوا، یعنی سونا پایا گیا، سونا پایا گیا۔ تو یہ کہنے کا مقصد ہے کسی کام کا کرنا یا ہونا تینوں زمانہ میں سے کوئی ایک زمانہ میں پایا جائے گا۔ خط لکھا تو خط کب لکھا؟ گزشتہ زمانہ میں، گزرے ہوئے زمانے میں خط لکھا۔ یا پھر ابھی حال فی الحال میں اگر لکھ رہے ہیں تو وہ زمانہ حال اس کو کہا جائے گا کہ ابھی آپ لکھ رہے ہیں، جس کا مطلب ابھی حال فی الحال میں آپ لکھ رہے ہیں۔ یا پھر اگر آپ کبھی لکھیں گے تو وہ زمانہ مستقبل ہو جائے گا، جس کو بھوشیہ بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اب اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ماضی، حال، مستقبل جب ہو گیا، تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہے، اسی کو فعل کہا جاتا ہے۔ اسی کیا کہا جاتا ہے؟ فعل کہا جاتا ہے۔ تینوں زمانہ اس میں ضرور پایا جائے، تو کوئی ایک ہی زمانہ پایا جائے تو ماضی پایا جائے گا، یا پھر حال یا مستقبل۔ تو ماضی، گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہا جاتا ہے۔ جو بات بیت چکی ہے، جو بات گزر چکی ہے نا، اس کام کو اگر کوئی استعمال کرتے ہیں، کوئی لفظ اگر استعمال کریں گے اس سلسلے میں، تو اس فعل کو اگر کہیں گے فعل ماضی کہیں گے۔ اور کوئی کام آگے حال فی الحال ابھی ہو رہا ہے، جیسے حامد نے خط لکھا، تو حامد نے خط لکھا۔ خط لکھا، اب یہ کب لکھا ہے؟ گزشتہ کی بات کر رہے ہیں، گزرے ہوئے زمانے کی بات کر رہے ہیں، ہے نا، کہ خط لکھا ہے یا لکھا تھا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ماضی کی بات ہو گئی۔ دوسری بات، حامد خط لکھتا ہے، جیسے ہی اس میں آ جائے گا حامد خط لکھتا ہے، تو جہاں تا ہے
या ते हैं या ती है, अगर आ जाए वो समझ लेना क्या है, वो हाल है। वो क्या है, वो हाल है। खत लिखता है या खत लिखते हैं या पढ़ते हैं या सोते हैं, अगर ऐसा कहीं अगर जुमला आ जाए ता ते ती वाला, वो समझ लेना कि वो फेल हाल है। और मुस्तकबिल, मुस्तकबिल उस काम को कहते हैं कि उस फेल को कहा जाता है जिस काम को किसी आइंदा ज़माने में करेंगे। किसी काम को अगर आइंदा ज़माना में करने की अगर बात कर रहे हैं तो उस फेल को फेल मुस्तकबिल कहा जाता है। जैसे उसकी मिसाल देखिए, जैसे साजिद अखबार जैसे साजिद अखबार पढ़ेगा, तो साजिद अखबार पढ़ेगा में ये पढ़ने की बात मुस्तकबिल की कर रहे हैं, है ना, कि वो आइंदा वो पढ़ेंगे कभी, अभी नहीं पढ़ रहा है या पढ़ा नहीं है, बल्कि वो आगे कभी पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, उसके बाद 2-4 दिन के बाद पढ़ेंगे, साल भर के बाद पढ़ेंगे। तो ये जहाँ गा गे गी आ जाए, पढ़ेगा, पढ़ेंगे, पढ़ेगी, वो समझ लेना फेल मुस्तकबिल है। क्या हो जाएगा, वो फेल मुस्तकबिल हो जाएगा। जहाँ गा गे गी आ रहा है उसकी पहचान ही है फेल मुस्तकबिल को पहचानना। कैसे पहचानेंगे फेल मुस्तकबिल को, कि जहाँ पर गा गे गी आ जाए, गा गे या गी अगर आ जाए, है ना, जिस जुमले में गा गे गी आ जाए वो समझ लेना वो फेल मुस्तकबिल है। जैसे पढ़ेगा, खेलेगा, सोएगा, जागेगा, दौड़ेगा, दौड़ेगी, पढ़ेगी, सोएगी, खेलेगी, या फिर पढ़ेंगे, सोएंगे, खेलेंगे, जहाँ भी गा गे गी इस तरह से अल्फाज अगर आ जाए वो फेल मुस्तकबिल है। ठीक है। और हाल में क्या होगा, हाल में लिखता है, ता है, ते है, ती है आएगा। उसकी पहचान क्या है, हाल की पहचान ही है ता है, ते है, ती है ना। पढ़ता है, सोता है, गाता है, तो ये सब क्या है, हाल की पहचान जो मैंने बता दी। लिखता है, पढ़ता है, सोता है, जागता है, ये सब की हाल की पहचान है, ता है, ते है, ती है, ये हाल की पहचान है। ठीक है। माजी की बात मैंने कर दी, हामिद ने खत लिखा, यहाँ तक बात हुई। इंशाअल्लाह आगे जो है, कल मैंने एक बात बताई थी कि फ़ेल लाजिम और फ़ेल मुतअद्दी, पहले हम उसको अब रिपीट कर देते हैं। फ़ेल लाजिम किसको कहते हैं, और उसके बाद फिर हम 2 बात और बताएंगे फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल के बारे में। फ़ेल लाजिम के बारे में मैंने बताया, फ़ेल लाजिम जो सिर्फ फ़ाइल पर पूरा हो जाए, है ना। फ़ेल लाजिम उस फ़ेल को कहा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ फ़ाइल पर पूरा हो जाए, फ़ेल और फ़ाइल दोनों मिलकर के पूरा हो जाए, उसी को फ़ेल लाजिम कहा जाता है। उसमें मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ़ेल लाजिम में मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसकी मैंने पहचान बताई थी कि जिस जुमले में लफ्ज़ वह आ जाए वो जुमला या वो फ़ेल लाजिम होता है। जैसे वो गया, वो गया, दानिश सो गया। देखिए इसमें फ़ेल लाजिम में सबसे पहली बात यह है कि फ़ेल माजी इस्तेमाल होगा, और फ़ेल लाजिम में लफ्ज़ वो की उसकी पहचान क्या है, लफ्ज़ वो, कि लफ्ज़ वो यानी कि इसमें ये फ़ाइल पर ही पूरा हो जाता है। फ़ाइल इसमें कौन है, फ़ाइल इसमें होता है वो। फ़ाइल कौन है, फ़ाइल वो है। फ़ाइल कहते हैं किसको, फ़ाइल कहते हैं किसी काम के करने वाले को।
किसी काम के करने वाले को फाइल कहा जाता है। फाइल किसको कहते हैं? फाइल कहते हैं किसी काम के करने वाले को। फाइल किसी काम के करने वाले को क्या कहते हैं? फाइल कहा जाता है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि फ़ेल और फ़ाइल मफ़ऊल तीन चीज़ होती है। फ़ेल तो किसी काम का करना या होना, इसी को फ़ेल कहा जाता है। कोई ज़माना में से कोई एक ज़माना पाया जाए, तीनों ज़माना में से कोई एक ज़माना पाया जाए, उसको क्या बोलते हैं? फ़ेल कहा जाता है। फ़ाइल किसको कहते हैं? फ़ाइल कहते हैं करने वाले को, किसी भी काम के करने वाले को फ़ाइल कहा जाता है। किसी काम के करने वाले को क्या कहते हैं? फ़ाइल कहते हैं। जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ तो लिखने वाला काम जो है मेरा हो रहा है, इसलिए मैं फ़ाइल हो जाऊँगा। अगर हामिद लिख रहा है, हामिद ख़त लिखता है काम के करने वाले को, हामिद सो गया, तो हामिद सो गया में ये हामिद जो होता है, ये हामिद क्या है? ये हामिद फ़ाइल है। क्या है? ये हामिद फ़ाइल है ना। और सो गया ये क्या है? फ़ेल है। क्या ये? फ़ेल है। ठीक है ना। तो फ़ाइल कौन? सोने का काम कौन कर रहा है? सोने वाला काम किससे हो रहा है? इससे। सोने वाला काम कौन कर रहा है? हामिद। सोने वाला काम कौन कर रहा है? हामिद कर रहा है, इसलिए हामिद क्या हो जाएगा? फ़ाइल हो जाएगा। फ़ाइल कहते ही हैं उसको जो काम करने वाले हैं। जैसे कि कोई आदमी दौड़ रहा है, जैसे अरशद दौड़ता है, अरशद दौड़ रहा है, तो अरशद दौड़ रहा है, अरशद दौड़ता है, इसमें दौड़ने का काम हो रहा है। तो दौड़ कौन रहा है? इसमें दौड़ने का काम कर रहा है अरशद। दौड़ने का काम कौन कर रहा है? अरशद। इसलिए दौड़ने का काम कौन? अरशद। दौड़ने का काम अरशद कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? अरशद फ़ाइल। इसलिए अरशद फ़ाइल, इसलिए क्या? अरशद फ़ाइल है। तो मुझे ये उम्मीद है कि आप हजरात फ़ाइल को समझ गए होंगे कि फ़ाइल कहा जाता है किसी काम के करने वाले को। ठीक है। तो इसी के साथ साथ में दौड़ने का काम हो रहा है। दौड़ने का काम किसके ज़रिए से हो रहा है? अरशद के ज़रिए से। तो अरशद फ़ाइल हो जाएगा। और फ़ाइल कहते ही उसको जो किसी भी काम के करने वाले को, सोना या पढ़ने का काम अगर मैं कर रहा हूँ या कोई कर रहा है, पढ़ने का काम जो करेगा तो उसी को फ़ाइल कहा जाएगा। अब एक होता है मफ़ऊल। ये क्या होता है? मफ़ऊल। मफ़ऊल किसको कहते हैं? मफ़ऊल जो होता है जिस पर फ़ाइल का असर ज़ाहिर हो। मफ़ऊल बनाया था किसको? मफ़ऊल कहते हैं जिस पर फ़ाइल का असर ज़ाहिर हो। मफ़ऊल जिस पर फ़ाइल का असर ज़ाहिर हो। मफ़ऊल किसको कहते हैं? जिस पर फ़ाइल का असर ज़ाहिर हो। यानी कोई आदमी कोई काम कर रहा है, जैसे हामिद जो है राशिद को पीट रहा है, तो पीटने का काम कौन कर रहा है? हामिद। जैसे उसकी मिसाल दे देता हूँ पहले। हामिद राशिद को मार या पीट रहा है। यहाँ पर हामिद जो है किसको मार रहा है? हामिद किसको मार रहा है? राशिद को। किसको? राशिद को मार रहा है। तो मारने वाला या पीटने वाला काम किस पर हो रहा है? पीटने वाला काम राशिद पर हो रहा है। पीटने वाला काम
पीटने वाला काम राशिद पर हो रहा है। पीटने वाला काम राशिद पर हो रहा है। राशिद मार खाने वाला है। राशिद क्या है? राशिद मार खाने वाला है ना। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए राशिद क्या हो जाएगा? मफऊल। राशिद क्या हो जाएगा? इसलिए मफऊल हो जाएगा राशिद। क्यों? कि फाइल का असर यानी हामिद मारने वाला और राशिद मार खाने वाला। राशिद क्या है? मार खाने वाला। मार खाने वाला कौन? राशिद। राशिद मार खाने वाला है। तो हामिद चूंकि मारने वाला है और राशिद मार खाने वाला है, तो हामिद का पीटने का काम किस पर हो रहा है? पीटने का काम जो हो रहा है राशिद पर हो रहा है। पीटने वाला काम राशिद पर हो रहा है। राशिद पिटा रहा है। इसलिए पिटाई वाला काम जब राशिद पर हो रहा है तो राशिद ही मफऊल होगा। राशिद ही मफऊल होगा। यानी फाइल का असर यानी हामिद का असर, हामिद की पिटाई हो रही है किस पर? राशिद पर। इसलिए राशिद मफऊल हो जाएगा। दूसरी बात, मफऊल की पहचान क्या है? मफऊल की पहचान क्या है? को है। क्या है? को। राशिद को, हामिद को, है ना। जिसको भी लगेगा वो मफऊल की पहचान है। ये क्या है? मफऊल की पहचान है। ये मफऊल की क्या है? ये पहचान। मफऊल की पहचान क्या है? को है। हामिद को, राशिद को। तो ये एक आसानी के लिए है, कुछ ज़रूरी नहीं है कि लफ्ज़ को आए ही। जैसे एक तो ये हुआ। दूसरी बात एक और मिसाल दे देता हूँ। जैसे राशिद ने खत लिखा, तो इसमें देखिए ये खत क्या है? लिखने वाला काम काम कौन कर रहा है? लिखने का काम राशिद कर रहा है लिखने का काम। राशिद कर रहा है लिखने का काम। क्या लिख रहा है? खत। लिखने का काम किस पर हो रहा है? खत पर, यानी कलम कागज से क्या कर रहा है? वो खत लिख रहा है। इस बुनियाद पर लिखने का काम खत पर हो रहा है, इसलिए खत क्या हो जाएगा यहाँ पर? मफऊल। खत क्या हो जाएगा? खत यहाँ पर मफऊल है। खत क्या है? मफऊल है यहाँ पर। और राशिद क्या है? राशिद चूंकि खत लिख रहा है, लिखने का काम हो रहा है राशिद के जरिए से, इसलिए राशिद क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा। और खत लिखा क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। एक तो ये बात। अब इसके बाद मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि फेल, फाइल, मफऊल। फेल किसको कहा? तीनों ज़मानों में से, यानी माजी, हाल, मुस्तकबिल, ये 3 ज़माना है। इन तीनों ज़मानों में से कोई एक ज़माना अगर पाया जाए तो उसको फेल कहा जाता है। उसको फेल कहा जाता है। कोई भी काम करेगा वो काम या तो माजी में होगा, या फिर वो हाल में करेगा, या फिर वो मुस्तकबिल में करेगा। अगर पढ़ेगा या तो वो पढ़ चुका है पहले, या फिर अभी पढ़ रहा है, या फिर वो पढ़ेगा कभी। ये तीनों ज़मानों में से कोई एक ज़माना उसमें पाया जाएगा। ये फाइल हुआ, फेल हुआ। और फाइल कहते हैं किसी भी काम के करने वाले को किसी भी काम के करने वाले को फाइल कहा जाता है। फाइल किसी काम के करने वाले को फाइल कहा जाता है। तीसरी बात, मफऊल। मफऊल किसको कहते हैं? जिस पर फाइल का असर ज़ाहिर हो। मफऊल कहते हैं जिस पर फाइल का असर ज़ाहिर हो, यानी फाइल कोई काम कर रहा है और जिस चीज़ पर या जिस शख्स पर उस फाइल का काम करने वाले का असर हो रहा हो, उसी असर वाले को मफऊल कहा जाता है। असर वाले को मफऊल कहा जाता है। वो असर कबूल करने वाला है। अगर हामिद राशिद को पीट रहा है तो पीटने वाला, जो पिटाई का जो काम हो रहा है वो राशिद पर हो रहा है, इसलिए राशिद मार खाने वाला है, वो मार खाने वाला ही मफऊल हो जाएगा। खत लिख रहा है कोई, अगर राशिद ने खत लिख रहा है राशिद, तो खत क्या हो जाएगा? लिखने वाला कौन है इसमें? राशिद। लिखने वाला कौन है? राशिद है लिखने वाला।
اور لکھ کیا رہا ہے؟ خط لکھ رہا ہے. اسے لکھنے کا جو اثر ہو رہا ہے وہ خط پر ہو رہا ہے. اس بنیاد پر یہ خط کیا ہو جائے گا تمہارا؟ مفعول ہو جائے گا. چلو اب اس کے بعد ہم بتانے والے ہیں فعل لازم. اور فعل لازم کل بتایا تھا، اسی کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں. فعل لازم اس فعل کو کہا جاتا ہے جس پر جو فعل اور فاعل دونوں مل کر کے پورے ہو جاتے ہوں. کل میں نے بتایا تھا. اور انشاءاللہ اس کے بعد ابھی ہم بتانے والے ہیں فعل معروف. اس کو کٹ کرو.